Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of EduCamp. In the series of this YouTube lecture on academic subjects, so let us make the discussion about very important issue of chapter number 5 of public administration, and that is the paper 2, and this is related to plans and priorities. Modi government in 2015 have taken very bold decision. A decision was a replacement of Planning Commission by Niti Aayog. Very well. Question is, why Planning Commission had been replaced by Niti Aayog? What were lacunas in Planning Commission? So all the areas, what factors are responsible for replacing Planning Commission? Because Planning Commission was very oldest body. It has been very prominent body at that particular time. Policy makers were adjusted there in order to make the national plan. 5 years plan is said to be the very great plan of our country. And that planning commission has been replaced by Niti Aayog. Why Modi government took decision in such a way? So let us automatically analyze each and everything from the administrative perspective, not political perspective, administrative perspective. So some details are here, some factors are here, some factors are responsible for replacement of planning commission. So let us automatically make the discussion. There was lacuna in the planning commission that had been stated by the many reforms committees earlier. So in the reforms committees, the first administrative reforms committee has also made the recommendation कि planning commission अब उतना relevant नहीं रहा जितना होना चाहिए था. Because planning commission has been created in 1950 and up to 2014, it has become a part of outdated mechanism. Many a times in between, chief ministers of state made the recommendation कि planning commission अब हट जाना चाहिए. Planning commission is not suitable for the constitutional spirit. It is not suitable for the its own orientation while making the plan and the making the perspective planning. तो इनको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, राइट? तो क्या क्या फैक्टर्स थे और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, राइट? So many factors evaluated by many reforms committees, and the first important factor was their planning commission as the super cabinet. तो देखो बच्चे 1950 में इनको हमने बनाया था और यहाँ तक आते आते तक इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द सुपर कैबिनेट. क्यों सुपर कैबिनेट था? तो अशोक चंदा was very important in a scholar and that has made the interpretation. That is, this is the cabinet and cabinet is headed by which one? That is the prime minister. तो prime minister cabinet को head कर रहे हैं. And this is the planning commission and planning commission was also headed by the that is the prime minister. तो prime minister ने अगर national plan बना लिया and ये review करने के लिए जाता है कैबिनेट में, then every person will support because who is the chairperson? That is the prime minister. So at that particular time, who is going to reveal the super cabinet? That is the planning commission is going to reveal the super cabinet. At that time, party was dominating. Indian National Congress party was dominating. तुम्हें लगता है कि कोई मिनिस्टर ऐसा होगा जो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, भाई ऐसा आपने क्यों किया? नहीं. Then and thereafter, the plan has to go to NDC. The NDC में भी कौन चेयरपर्सन? That is the prime minister, the chairperson. लगता है तुम्हें कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन ने साइन किया हुआ है 5 years डॉक्यूमेंट पे एंड कैबिनेट मेंबर और द एनडीसी का मेंबर विल गेट ऑब्जेक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट? नहीं. तो जो डिसीजन ले लिया प्लानिंग कमीशन ने, दैट इज द फाइनल. नीदर यूनियन कैबिनेट हैज टू रिव्यू नॉट एनडीसी हैज टू रिव्यू. तो दोनों में कोई भी रिव्यू नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि which one is going to dominate in Indian planning? That is the planning commission. Planning commission has become a part of super cabinet, you can say. वो तो चल गया जब नेहरू का जमाना था, इंदिरा गांधी जी का जमाना था, उस समय तो इट्स ओके. बट 21st century में we have just favored the coalition government, and coalition government consisting of many political parties. Here prime minister political party is not dominating, single party domination of Congress party diluted. और अब तुम अगर प्लान बनाते हो, then you have to put before the cabinet. Cabinet will review it, will make objection upon national plan. Regional political parties are there, they will also make the objection in order to get the more and more grants to their states. तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश का, टीएमसी वेस्ट बंगाल का है,
तो उनके अगर कोई यहाँ पर कैबिनेट कुली है, देन दे विल बार्गेन फॉर देयर ओन रीजन। उनको क्या मतलब वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, उनको मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश को मिला कि नहीं मिला। तो such kind of regionalism has challenged super cabinet character of public. This is planning commission. NDC maybe same thing was there. Chief ministers are coming from different political party and has to maintain the bargaining also. So planning commission earlier regarded as super cabinet was accepted, it's okay. But after 21st century, जब पोलिशन का एरा आया, अलायंस का एरा आया, it got challenged before the planning commission. लोगों को ऐसा लगने लगा कि this particular body either be reformed or to be replaced. Because such kind of super cabinet, एक extra constitutional body super cabinet बन जाए, it is neither suitable for the parliamentary democracy nor suitable for the collectivism in decision making. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन था प्लानिंग कमीशन है सुपर कैबिनेट। प्लानिंग कमीशन एज ए स्टाफ एजेंसी, ये भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन था। हाँ, ये सिस्टम में कि दिस इज द प्लानिंग कमीशन हैज टू मेक द प्लान फॉर्मुलेशन, प्लान को फॉर्मुलेट करेगा। ये प्लान फॉर्मुलेट होने के बाद होता है क्या, प्लान इंप्लीमेंट होता है। इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है, दिस इज द प्लान इवैल्यूएशन, एंड इवैल्यूएशन के बाद जो भी फीडबैक आते हैं, देन वी हैव टू जस्ट मेक द प्लान फॉर्मुलेशन, देन इंप्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। तो प्लान formulation was made by planning commission, evaluation was made by planning commission, but implementation was not made by planning commission because planning commission was staff body, staff agency to the government of India. ये काम कौन करते थे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज देयर। अब कंसीडर करो कि प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया एंड हैज टू से कि टारगेट इज 6% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, and you are getting after evaluation that is the 3%. Then planning commission has to blame what? Implementing agency को, मैंने तो प्लान बनाया था, आपने implementation नहीं किया। And they started fighting for the formulation, implementation and fighting has been taken. Reason is what? Basically reason ये है कि आपने इसको disconnect कर दिया। Wide role, one person has to say plan formulation and plan implementation cannot be डिसइंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, बट आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो डिसइंटीग्रेट अगर कर दिए तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैव बीन टेकन प्लेस। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हैज टू ब्लेम प्लानिंग कमीशन कि दिस प्लानिंग कमीशन हैज मेड इरेशनल प्लान, इलॉजिकल प्लान, इम्प्रैक्टिकल प्लान, एंड प्लानिंग कमीशन हैज टू ब्लेम टू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कि दिस पीपल आई हैव मेड द प्लान विद अ ग्रेट रिसर्च एंड दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू implement the plan with the serious nature. दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भी ऐसा लगने लगा कि इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएट हर्डल्स इन द प्लान इंप्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट ये रीजन था। थर्ड रीजन, कमलनाथ ने एक इशू क्रिएट कर दिया इन द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, एंड प्लानिंग कमीशन वाज रिगार्डेड ए आर्म्ड चेयर इंस्टीट्यूशन। तो एक उनका मिनिस्ट्री था रोड ट्रांसपोर्ट, एंड ही वाज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉडल कॉन्सेशनल एग्रीमेंट MCA, इस एरिया को प्लानिंग कमीशन को अप्रूवल देना था, एंड प्लानिंग कमीशन हैज मेड द कमेंट अपॉन दिस एग्रीमेंट दैट वाज सो you can say open the research and development behind the scene of the planning commission. प्लानिंग कमीशन को पूरा पोल खोल दिया इन्होंने। प्लानिंग कमीशन वाज यूजिंग आउटडेटेड डाटा, एकेडमिक डाटा भी इनके पास में रिसेंट का नहीं था, आउटडेटेड डाटा वाज देयर। ग्रोथ रेट, एवरेज प्रोडक्शन, दैट इज ऑटोमेटिकली थ्योरेटिकल, नॉट ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बेसे भी नहीं था, रिसर्च कर रहे। एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव डायनामिक्स हैज नॉट बीन कंसीडर, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है, कास्ट का इफेक्ट में पॉसिबल तो रीजन का इफेक्ट में, इनको ये इफेक्ट नहीं, कंप्लीटली रैशनल, एकदम फैक्ट ओरिएंटेड प्लानिंग था। जबकि प्रैक्टिकलिटी में तो हमें काफी वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ता है, इनका कोई प्लानिंग नहीं था इस तरह का। प्लानिंग कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट, जाहिर है जब इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट को रखोगे, दे आर फोकसिंग ओनली अपॉन द डेटा, एंड डेटा इज नॉट रिलेटेड टू वैल्यूज, कम्युनिटी वैल्यू से रिलेटेड डेटा इनके पास था नहीं था, देन एंड देयर आफ्टर इट हैज क्रिएटेड द चैलेंजेस।
Another, planning commission is not automatically well implemented at grassroots level, क्योंकि ये बनाते कुछ थे, प्रैक्टिकल डिमांड कुछ था. देयर वाज कंप्लीटली गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस. एंड प्लानिंग कमीशन को इस हद तक पता नहीं था इंप्लीमेंटेशन मशीनरी बनाते समय कि मिलता जुलता मशीनरी या प्रोग्राम ऑलरेडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में है, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना को इंप्लीमेंट किया है तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. अगर आप क्रिएट करते हैं तो देयर विल बी कुछ नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा एंड डुप्लीकेशन होगा. ये जो नेचर था प्लानिंग कमीशन का कॉम्पिटेंस के ऊपर में, दैट वाज द क्वेश्चन कि बॉडी कॉम्पिटेंट नहीं है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन. है तो रिसर्च बॉडी हमने बनाया था, दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट बॉडी. दैट्स अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड द प्लानिंग कमीशन एज ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी. ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी धीरे धीरे करते करते ना, पहले तो रिसर्च टीम था, रिसर्च एसोसिएशन था, तो लगा ठीक है रिसर्च में 5-6 लोग होने चाहिए, 10 होने चाहिए. धीरे धीरे करते करते ब्यूरोक्रेसी बढ़ने लगा. एंड लेटर इट हैज बिकम द बल्कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप. एक रिसर्च टीम अगर बल्कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में काम करने लगता है तो वो फॉर्मेलिटी में अपना पूरा टाइम बिताता rather than की रिसर्च एंड डेवलपमेंट. This was condition in the planning commission also. Planning commission was going to act as the bureaucratic machinery. प्लान कम बनते थे, अप्रूवल डिसअप्रूवल रेट टैपिज्म ज्यादा होते थे, तो ये बॉडी भी इनएफिशिएंट बन चुका था तब तक आते आते तक. प्लानिंग कमीशन एज एंटी फेडरल इंस्टीट्यूशन यू नो वेरी वेल, बिकॉज प्लानिंग कमीशन इज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्टेट प्लान टू. हालांकि स्टेट के पास में भी स्टेट प्लानिंग बोर्ड था, अभी भी है. तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड स्टेट प्लान बना रहा है, लेकिन एक रेगुलेशन था कि यू नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम प्लानिंग कमीशन. तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड जिसका चेयरपर्सन सीएम है, इन्होंने प्लान बना करके प्लानिंग कमीशन को दिया, अप्रूवल उनकी मर्जी से होगी. अब कंसीडर करो कि सेम पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, देन इट्स ओके. सेम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कुछ भी अगर उन्होंने डिसअप्रूवल कर दिया तो अननेसेसरीली द कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर. तो कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट हो गया था. दिस इज नॉट गुड मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इनको तो हटा करके कोई ऐसा मशीनरी लो जिसमें सीएम भी हो, पीएम भी हो, एंड हैज टू टेक द डिसीजन अपॉन नेशनल प्लान. गवर्निंग काउंसिल टाइप ऑफ सिस्टम कुछ आना चाहिए, राइट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट, प्लानिंग कमीशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन. तो प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो गेटिंग मच मोर सेंट्रलाइज, जबकि हमने एक्सेप्ट कर लिया था व्हाट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अगर स्प्रिट में तुम लेके चल रहे हो और साथ ही साथ ये प्लान प्रोसेस अगर मेंटेन करेगा, देन इट इज नॉट सुटेबल कॉन्सेप्ट फॉर द द सिस्टम हियर. तो कुल मिलाकर के ये हुआ इंटरप्रिटेशन कि 21st सेंचुरी आते आते तक ये प्लानिंग कमीशन आउटडेटेड हुआ. कैसे आउटडेटेड हो गया? इन मैटर्स ऑफ कॉम्पिटेंस आउटडेटेड हो गया. इन मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे सब लोग मिलकर डिसीजन लेते, कुछ प्राइम मिनिस्टर कुछ मिनिस्टर मिलकर, ये आउटडेटेड हो गया. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सूट नहीं करने लगा, फेडरलिज्म को सूट नहीं करने लगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो गया. ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को सूट नहीं करने लगा बिकॉज हमारा ये स्पिरिट था और ये तो लीडिंग टुवर्ड्स सो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थे. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट रिसर्च कॉम्पिटेंस को भी सूट नहीं करने लगा. रीजन इज व्हाट, ये ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था. तो अब इनसे बचने का एक ही तरीका था, इधर यू हैव टू रिप्लेस और यू हैव टू जस्ट मेक द रिफॉर्म. रिफॉर्म तो हमने नहीं किया, लेकिन हमने इसको रिप्लेस कर दिया. एंड रिप्लेस करके नीति आयोग बनाए. जो भी कमी था प्लानिंग कमीशन का, उसको नीति आयोग ने अपने तरफ से करेक्ट किया. नीति आयोग ने कैसे करेक्ट किया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. तो अगले लेक्चर का वेट करते हैं. ओके, तो चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में. सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल.